Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11 subject history. Today we will discuss or start the new chapter or the theme, that is seventh theme, the changing cultural traditions. Changing cultural traditions. This is our seventh theme. What are the glimpses or the important features of this chapter or the theme, or we will have a glance, have a light on these traditions, important features of this theme or the chapter are: significant changes took place in Europe from 14th to 17th centuries, which influenced the cultural traditions of Europe. From 19th century, historians used the term Renaissance to describe the phenomenon that marked this change of cultural traditions of the period. ये important chapter है. Before this we have discussed feudalism. Today we will discuss the meaning of or the scientific chapter regarding the Renaissance or the modern age, the cultural awakening, historical attitude, historical or the scientific approach. First of all, we will discuss the meaning of Renaissance. Renaissance के मायने क्या है, Renaissance के शुरुआत होने में Renaissance के वजूहात क्या रहे, यानी what were the meanings of Renaissance, what are the causes behind the growth of or the rise of Renaissance, वो क्या वजूहात थे, फैक्टर्स थे कि फ्यूडलिज्म की अख्ताम हुआ फ्यूडलिज्म का और निशात सानिया का Renaissance की शुरुआत हुई. The term Renaissance means literary rebirth. This French word was first used by a Swiss scholar, Jacob Burckhardt, in 1860. During the 14th to 17th centuries, a new humanist culture popularized the idea that man is an individual. Italian universities were centers of legal studies. यानी निशात सानिया के बारे में, if you will remember, you have write down or you have you are well known from 8th class, and then you have read out in this 10th class regarding the Renaissance, meaning of Renaissance. निशात सानिया के बारे में वो कौन से वजूहात थे कि साइंसी मिजाज, डेवलपमेंटल मिजाज, मॉडर्निज़म की शुरुआत हुई, और मॉडर्निज़म के बारे में जो शागिर्दाराना निज़ाम का इख्तिताम हुआ, क्रूसेड्स का इख्तिताम हुआ, डार्क एज का इख्तिताम हुआ, तो मॉडर्निज़म की शुरुआत हुई, साइंटिफिक अप्रोच के बारे में शुरुआत हुई. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ Renaissance. First of all, we will try to note the meaning of Renaissance. Renaissance literally means rebirth, the new awakening, the intellectual and cultural awareness in history. Past is never reborn. Past is never reborn. By promoting the studies in ancient Roman and Greek literature, as a result, a new culture emerged, a new ideologies, new traditions, new civilization emerged. That was an modern or the scientific with scientific lines. यानी
निशात सानिया जो है, दिस वाज सॉर्ट ऑफ एन अवेकनिंग, दिस वाज एन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेयरनिंग, दिट वाज इफ अगरचे ये रिबॉर्न जो है पास्ट दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन अगर पास्ट के बारे में जानकारी होगी, पास्ट के बारे में उन खामियों पे खूबियों पे नज़र होगी, तो शायद मुस्तकबिल अच्छे लाइनों पे शुरुआत होती है। तो खामियों में बहुत जो खामियां कम होंगी और ज़्यादातर डेवलपमेंट के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, कल्चर के हवाले से, मॉडर्निज़म के हवाले से और साइंटिफिक अप्रोच के हवाले से तरक्की होगी, जो बेहतर से बेहतर होगा। इसमें सबसे जो रोल रहा है, जो जैकब जो बर्कार्ड है, जो उसने जो ही वाज ए स्विस स्कॉलर, इसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। रेनेसांस meant revival of the ancient Greek and Latin culture, यानी जो बाद में रोमन और ग्रीक कल्चर्स के बारे में, और लैटिन और ग्रीक की जो कल्चर्स है, जो लिटरेचर है, it was started or beginning from the Italian city or Italian country। तो इटली शहर से इसकी शुरुआत होती है, स्पेशली फ्राम द एंड फॉलोड बाय द टाउन्स ऑफ रोम, वेनिस एंड फ्लोरेंस। अगर इस रेनेसांस की शुरुआत इटली से हुई, इटली के बाद आहिस्ता आहिस्ता रोम के बाद वेनिस और फ्लोरेंस, दोज आर द टाउन्स, दोज आर द सिटीज़ ऑफ इटली। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यूरोप, पहले इसकी शुरुआत रेनेसांस की, निशात सानिया की रिबर्थ की शुरुआत इटली से हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों में, टाउनों में ये फैलता गया, तो इस तरह पूरे यूरोप में इसका फैलाव हुआ। द टर्म रेनेसांस मैन इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन with many interests and skills, because many of the individuals who became well known at this time were people of many parts. They were scholars, diplomats, theologians, artists combined in one man। यानी इससे पहले इंसान के मुतल्लिक सिर्फ यही समझा जाता था, ही इज़ एन सर्फ, ही इज़ वो एक सिर्फ गुलाम है, एक सर्वेंट है, उसकी बहुत ही कम खूबियाँ हैं। लेकिन अब इंसान के मुतल्लिक एंड इंडिविजुअल के मुतल्लिक ये समझा जाता है कि उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, उसमें बहुत से, ही इज़ हैविंग डिफरेंट विद डिफरेंट आर्ट्स है, डिफरेंट स्किल्स है, डिफरेंट अप्रोचेस, उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं एक ही इंसान में, बहुत से। अगर उसमें देखा जाए कि ही इज़ नॉट ए इंडिविजुअल बट ही इज़ ए कम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे खूबियाँ हैं जो एक इंसान में समाई हुई हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एन इंडिविजुअल, ही कैन बी वेल नोन, उसके बारे में ही इज़ ए डिप्लोमेट, ही इज़ ए थियोलॉजियन, ही इज़ एन आर्टिस्ट, यानी उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं एक ही इंसान में जमा हैं। रेनेसांस eroded the spirit of equality among the people and attacked on the superstitions and rituals prevailing in the society। especially जो इससे पहले सोसाइटी में जो खामियां थी, उसमें जो ऑर्थोडॉक्सी थी, इसमें जो सुपरस्टिशंस जो थे, तवहम परस्ती जो थी, जो लाइल्मी थी, जो जहालत थी, उस चीज़ को खैरबाद किया गया। अब उसके बारे में ये समझा जाता है कि सुपरस्टिशन इज़ नॉट, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्निज़म, जहालत का अख्ताम होता है फ्यूडलिज़म के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता तालीम और इल्म ने वो जगह ले ली, तो इंसान की कदर क़ीमत, स्पेशली जो प्लेटोज़ के बाद, एरिस्टोटल के बाद रोम और इटली से शुरू हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो ग्रीक के जो स्कॉलर्स ने जो आइडिया दिया, स्पेशली रिगार्डिंग द इक्वलिटी, इंसान बाय बर्थ हर एक इंसान आज़ाद है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इक्वलिटी, हर एक इंसान के बारे में ये समझा जाता है कि मैन इज़, ऑल द पीपल आर इक्वल, हर एक इंसान बाय बर्थ इक्वल होता है।
तो रेनेसांस ने ये स्पिरिट आहिस्ता आहिस्ता राइट टू इक्वलिटी, स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी among the people and especially attacked the superstitions rituals prevailing in the society। जो तोहम परस्ती समाज में थी उस पर तोड़ किया गया इस रेनेसांस की वजह से। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वर डीपली अफेक्टेड बाय द रेनेसांस। समाजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और इक़्तिसादी ज़िंदगी जो इंसान की थी, तो इससे बहुत ही इस पे खुशाइन असरात हुए। रेनेसांस की तवस्सुत से समाजी ज़िंदगी तब्दील हुई, सियासी ज़िंदगी तब्दील हुई, इक़्तिसादी ज़िंदगी उसकी तब्दील हुई। जब इसमें डेवलपमेंट आई, जिस भी इसमें नॉलेज, कल्चरल अवेकनिंग हुई, हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में, साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, तो इस तरह रेनेसांस से इंसानी ज़िंदगी में बदलाव आया। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट वर द कॉजेज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसांस। वो कौन से वजूहात थे जिस तरह निशात सानिया के हेल्पफुल रहे और उसमें काम रेनेसांस फैलने में, वो फ्यूडलिज्म के अख्ताम होने में कौन से वो वजूहात थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी जो नज़दीकी हुई ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ये तो पहला इसमें वजूहात में से था। With the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports of the Italian coast revived from the 12th century as the Mongols opened up trade with China via Silk routes, and as trade with Western Europe countries also increased, Italian towns played an central role। यानी अगर हम ये कहेंगे मशरिक़ और मगरिब को जमा करने में, मशरिक़ और मगरिब को मिलाने में, और दो बड़ी अहम सल्तनतें, एम्पायर्स, जो इस्लामिक एम्पायर और बिज़ंटाइन एम्पायर को नज़दीक लाने में तिजारत ने अहम रोल अदा किया। वाया स्पेशली एंड द ट्रेड बिटवीन द मंगोल्स एंड चाइना वाया सिल्क रूट, इट हेल्प्ड टू द closure of east and west, and with the help of trade. Especially Italian towns played an important or the central role in this connectivity. They no longer saw themselves as part of a powerful empire but an independent states। अब उन्होंने अपने आप को बहुत ही नज़दीक पाया तिजारत की वसत से। सेकंड, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ओटोमन टर्क्स, जो बेज़ंटाइन एम्पायर का जो इससे पहले जो राजधानी थी, दैट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। जब उसका इस्तांबुल नाम पड़ा, तो इस तरह ये जब उस्मान तुर्कस ने इसको कब्ज़े में लाया, तो इससे भी इन द लेट 14th century long distance trade declined and then became difficult after the Turks conquered Constantinople. Italians managed to business with Turks but were now required to pay higher taxes on trade. The possibility that many more people could be brought into the fold of Christianity made many devout Christian European ready to face the adventures। यानी उस्मान तुर्कस ने जो ही कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ बाद में इस्तांबुल को अपने कब्ज़े में लाया और उसको कैपिटल के रूप में, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें उस्मान तुर्कस के हवाले से, इटालियन ये जो बिज़नेस के हवाले से और ट्रेड के हवाले से जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग नज़दीक आए लोगों के, और इसमें मजहबी तौर पर क्रिश्चियनिटी का भी फैलाव हुआ, तो दैट वाज एन हेल्पफुल और एन एडवेंचर। क्रूसेड्स, द क्रूसेड्स अगेंस्ट द टर्क्स बिगेन एज ए रिलीजियस वॉर बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। यानी उससे पहले अगरचे ये सिर्फ जंगो जदल ही था, सिर्फ वार जी थे, लेकिन अब उसमें जब एक तरफ
इस्लामिक फोर्सेस, दूसरी तरफ क्रिश्चियन फोर्सेस, तो अब उसको अब सलेबी जंगों को अब मजहबी रंगत के रूप में देखा गया। इस तरह ये क्रूसेड्स ने भी रेनेसांस के हवाले से अपना रोल प्ले किया और लोग इससे तंग आ गए कि अब मज़हब के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो क्रूसेड्स की वजह से एक तो एज़ यूजुअल वार्स थे, लेकिन ये अब मजहबी वार्स के रूप में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मजहबी रूप ले लिया। तो क्रिश्चियन क्रूसेड्स ने भी रेनेसांस के हवाले से अपना रोल प्ले किया, क्योंकि क्रूसेड्स की वजह से लोग तंग गए थे। मजहबी बुनियाद पर जंग जदल तरक्की के हवाले से बहुत ही प्रॉब्लम्स और मुश्किलात थे। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एक और जो अहम संगी मील रहा कि जागीरदाराना निज़ाम का अख्ताम हुआ। तो जागीरदाराना निज़ाम ने सोसाइटी को बहुत ही तबाह व बर्बाद किया था, लोगों में तफावत की थी कास्ट्स में पेशे के हवाले से। तो ज़्यादातर आम लोग जो थे, मिडिल क्लास नहीं था, इस तरह लोगों में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बाय द एंड ऑफ 16th century feudalism began to decline, paving the way for the new order in the society। फ्यूडलिज़म के ज़वाल के बाद एक नए निज़ाम की शुरुआत हुई, एक नए निज़ाम की तलाश थी सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी में बहुत ही सुधार आया। राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड, अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि फ्यूडलिज़म का अख्ताम हुआ, फ्यूडलिज़म के अख्ताम के साथ टाउन्स का इमरजेंस हुआ, टाउन्स के जो शुरुआत हुई, टाउन्स के शुरुआत होने के साथ साथ तिजारत की शुरुआत हुई, तिजारत में तरक्की हुई। तो एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज accompanied by the growth of 3 related areas, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई जो विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 3 रिलेटेड एरियाज पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स। एक सबसे पहले ये कि इसमें जो पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई, अब टाउन्स की इमरजेंस हुआ, टाउन्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ ट्रेड भी डेवलप हुई। यानी 3 चीज़ों जो एक साथ साइमल्टेनियसली इनकी शुरुआत हुई। तो इसमें पॉपुलेशन, टाउन्स और ट्रेड, इनकी वजह से जो ये तो इट वाज बट नेचुरल। Towns were growing in many countries of the Europe. A distinct urban culture also developed। एक बल्दियाती जो बल्दियाती कल्चर जो था शहरी और जो टाउनशिप के हवाले से जो ट्रेड जो डेवलप हुई, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक और कल्चर डेवलप हुआ, दैट वाज द urban culture or a developed culture or the town culture, particularly the cities of Florence, Venice and Rome became the centers of art and learning। One of the most vibrant city was the Venice, another was Geneva। यानी जो टाउन्स ने अब डेवलपमेंट के हवाले से अपना रोल, अहम रोल अदा किया। तो इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई, दैट वाज द वेनिस, दैट वाज द फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। जो सबसे अहम जो शहर थे, सबसे अहम जो टाउन्स थे, जो आहिस्ता कल्चरल अवेकनिंग में उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया, और बाद में जेनेवा भी। तो इस तरह दीज सेंटर्स, दीज टाउन्स बिकेम द centers of art, these centers became the centers of learning, centers of culture। ये तो आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर के हवाले से, एक सिविलाइजेशन के हवाले से अमर्ज हुए। rise of new middle class, the most important was with the downfall of feudalism, a new middle class emerged which mainly comprised the towns people। They began to think of themselves as more civilized than रूरल पीपल। अब शहर में जो शहरी और बल्दियाती माहौल पैदा इमर्ज हुआ, तो इन्होंने अपने आप को महज़ब समझा एज़ कम्पेयर टू द विलेज। जो विलेज माहौल था, जो गाँवों का जो माहौल था, इसके मुकाबले में टाउन जो और अर्बन
जो कल्चर था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी मोर सिविलाइज्ड दैन द रूरल कल्चर. They began to think of themselves as more civilized than the rural people. Rise of nations. A new concept of nation state emerged as people were more inclined to a liberal society based on equality and freedom. King was no more the supreme authority. Nation states received more power and vigor from the Reformation. यानी अब with the emergence of new or with the emergence of middle class, क्योंकि अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, इसके बाद किंग के बाद जो दूसरे नंबर पे लॉर्ड्स थे, उसके बाद जो माइनर लॉर्ड्स थे, उसके बाद जो पीजेंट्स और सर्व्स थे. अब जो मिडिल क्लास विद द एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास सपोर्टेड द किंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड्स. आहिस्ता आहिस्ता उनके जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती गई. तो अब किंग को वो अहमियत नहीं रही जो इससे पहले थी. अब लोगों में भी वो जो उसकी वो सुपीरियरिटी थी उसमें कमी आई. लोग आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हें वो इज़्ज़त और मुकाम अपने आप में देखने को मिला. किंग वाज नो मोर द सुप्रीम अथॉरिटी. अब बादशाह की वो अहमियत नहीं रही जो इससे पहले फ्यूडलिज्म में था. नेशन स्टेट्स रिसीव्ड मोर पावर एंड विगर फ्राम द रिफॉर्मेशन. अब जो इस्लाहात की वजह से, अब इस्लाहात की मुमकिन से जो लोगों में विद द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द किंग वाज नॉट सो सुप्रीम अथॉरिटी एज बिफोर. अब आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की वो अहमियत कम होने लगी और मिडिल क्लास की अहमियत बढ़ने लगी विद द टाउन culture, with the urban culture, with the end of feudalism, and with the rise of nations, and with the rise of middle class. Thank you. Tomorrow we will take the beginning of modern age.